platform is sort of every transaction में it's involved. Netflix would have certain whole teams around products and engineers would just build for their engineers inside. You should be very open towards what you're building. उसका awareness कितना है? कंपनीज के इंटरव्यू में ग्राफ के डायनामिक प्रोग्रामिंग के इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंडस्ट्री में इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लोग केयर करते हैं, तुम ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। कम बिजनेस में ना टाइमली डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। ये कल्चर अभी भी है कि लोग यूएस जाना चाहते हैं। अब देयर इज नेवर अ चैलेंज इन इंडिया राइट नाउ कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का टैलेंट चाहिए। Hi Ashish, welcome to the podcast. So before I begin asking you more questions, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा यार अपना इंट्रोडक्शन बता दें और आपका जो करियर जर्नी है, you can tell us more about it. Got it. Yeah, so currently I work as Director of Engineering at India's largest logistic company called Delhivery. We are a public company now. मैं Delhivery में almost like 4 साल हो गए मुझे. Next month I will be completing 4 years. And I graduated from IIT Delhi in 2014 as an electrical engineer. During my whole engineering process, I was already writing code. I was writing code since childhood. And I've been working with multiple seniors of mine कि उनका startup kick off करना है. So the whole thing, conversation around कि someone can write a code for us, can someone write some forum for us. That started building around last year of college. We talked a lot about how to build certain things and most of the conversation इसलिए होता था कि लोगों के ideas क्या है and मेरा curiosity होता था कि ठीक है idea तो सोच लिया, how would you implement something things because उस समय तक we are only writing code as a DSA thing, optimize कर लो ये ON है कि नहीं है, but how would end people use your software, didn't have that professional background. So that was very helpful to start with and that sort of made my mind कि eventually I'd try and build something of my own. Will sort of, if that becomes a company or that becomes a hobby, we'll see that later. So that started upcoming. But then लोगों से बात करके IITs have a great network, right? And they have a great feedback system. Even if you know someone personally या नहीं भी पता है, but if you mention someone, you reach out to them, they reach out to back, very helpful. And I think one of the best things about these Indian great institutions are that people are very helpful to each other, at least, very reachable out. So when I reached out to them that how to start, how to set up a company, their sort of initial idea was that if you're so confused, let's start with some professional work and you join a company, see how they work in terms of it. To that effect, placement में बैठ गया, we got a first job. I joined a company called Gulf Talent, Dubai में. It was a recruitment firm and at least 3-4 of from IIT Delhi and few from IIT Bombay joined. There we started working. The work was very simple for us, at least for me, because I have been someone who has been writing code for a long time, doing web development for a long time, even before starting my own work. So that got boring. A couple of us decided let's build something out. We started experimenting with a few things. And then suddenly one day my flatmate received a call because he was from IIT Bombay and his seniors had started housing.com and they reached out that they have acquired IREF, Indian Real Estate Forum, and they wanted कि can you run इसका operation आके and if you have someone, a techie जिसको refer कर सकता है तो उसको भी ले. That was the sort of on loudspeaker call that was happening. And then he asked कि मेरे से कि do you want to join? And I was not sure real estate company में what a techie would do, what code I would write. So I said कि I want to talk to someone. They already had housing में few engineers who were working. So I said connect with me. I had a bunch of calls. Sounded interesting. Irrespective of what the business statement was, the tech side sounded very interesting. So took that bait, moved to India, and housing was growing very fast at that time. So चारों तरफ like buzz चल रहा था, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. So you got to learn how to build something out. There are folks moving out of housing who had just raised the first round and they were building their team. So उनसे ही बात करके would know कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. So that gave us some idea of what how do we want to shape up. Anish, my co-founder later, sort of got an idea of what space he wanted to enter. He wanted to build something which would cater to companies. And I sort of wanted something where I would, whatever we do, code does it. That's the general idea was that I wanted to be, and I didn't know that time that software as a service was a marketing term that I could have used then, but I wanted somewhere where I build something out where multiple people can use the same thing. Right? And we started sort of discussing multiple ideas. And then
different people and different companies had different problems. And again the IIT network held वहाँ पे कि किसी से भी reach out किया, people who were very senior folks out there in Bangalore, Mumbai, they're ready to talk to us of what, and we got some feedback of what their pain points was around particular digital software that we wanted to offer to a company, right? So again वहाँ पे ही step back करके I thought कि थोड़ा पढ़ लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं बाकी जगह और historically क्या कर रखा है. So I discovered that you read about Bill Gates and folks who had built, they always talk about let's build out a platform, and it's not just one product. And this platform word gets misused often, but at least Windows, Android, iOS would be a very good modern examples of the ideal platform of how you want to build platforms. That you would have something where end customers can directly use, but you'd also let others build on top of it, and their economy can also grow, right? Windows was what first which let people do development around it. It brought sort of the platform engineering sort of sense into it outside folks. iOS made it sort of cool that hey, everyone can make an app. Android brought it to the masses. India sort of became sort of a good contributor towards Android apps. India became the largest consumer as well and developer community as well. आई थिंक गूगल ने कुछ तो 1 बिलियन या कुछ इतने डॉलर्स अनाउंस भी किए थे बैक इन द डे, क्योंकि इतना ज़्यादा एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो रहा था. आई थिंक एक रीज़न ये भी था कि सारी सर्विस कंपनीज वर यूजिंग जावा एंड देन एंड्रॉइड वाज अ वेरी नेचुरल ट्रांजिशन. बट दैट सॉर्ट ऑफ गेव एन आइडिया दैट वॉट एवर आई वॉन्ट टू बिल्ड, द आइडिया वाज कि बार बार हर कंपनी के लिए री इन्वेंट ना करना पड़े व्हील. एंड द होल आइडिया वाज कि कैन देयर बी अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं. एंड सॉर्ट ऑफ दैट आई हैड सम पैरेलल थॉट, बट देन रीडिंग टर्न्स आउट कि लोगों ने ऑलरेडी सोच रखा था, विच इज़ गुड. It's very rare that you would come up with idea which others have not thought of. So that helped, and that sort of defined, and from then I sort of every time have to build something, I want to think is there possible or not. काफ़ी बार आपको आंसर मिलेगा कि नहीं प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते इस केस में, जस्ट stupid to invest energy in building a generic thing. But जब भी मिल जाता है तो there is a very satisfactory feeling, and then you can start from there of how to build a platform which others can directly live on and then build on top of as well. So if I understood correctly, platform engineering means you build a platform like Delivery built a platform for the logistic company, so they can build tech on top of it, they can also grow. Android is also an example where you build the platform, iOS is an example. So this is my understanding so far, but I would like to know in more detail. I see a lot of job postings happening where they say we need a platform engineer, and platform engineering industry is really growing and lot more vacancies are coming in. So could you please define more? What is a platform engineer job profile is in general? Right. तो थोड़ा widely used term है platform engineering, and I think different sort of companies use it differently. There's a very popular platform engineering vertical in DevOps side of the world. So earlier when we earlier started in tech, there would be infra folks जिनको हम बोल देते थे कि यार हमें 2 सर्वर चाहिए, एक महीने बाद हमें 4 सर्वर लगेगा, कुछ फेस्टिवल आ रहा है, हाँ, है ना, और दे वुड स्केल अप, दे वुड मैनेज आवर डेटाबेसेस, एंड उनको हम जब जो एक रिक्वायरमेंट दे रहे हैं उसका एक डिप्लॉयमेंट कर देते थे. दे वुड गिव अस एक्सेस, यू वुड पुश देयर कोड, योर लॉजिक, एंड यू वुड रन इट. देन स्लोली डेवऑप्स स्टार्टेड वेयर सम प्रोडक्टाइजेशन हो गया, है ना, डॉकर केम, कंटेनर्स रन होने लग गए, क्लाउड केम, देन यू हैव स्टार्टेड स्केलिंग थिंग्स. Then the whole DevOps thing became a product kind of thing, right? Every DevOps engineer now is not just infra person, they have to write code, infrastructure as a code came. So एक platform engineering वहाँ पे आ जाता है, which is an internal side of things कि we run a tech company और हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि developers जो हमारे internal है उनके लिए कुछ platform सेटअप कर दें कि वो बार बार reinvent ना करना. हर दूसरे दिन let's say मेरे को एक backend service live करनी है, right? आपका अभी एक service है which does let's say blogs of your geeks for geeks, another कल को एक classroom run करना है, they want to build backend. Some certain things would be common, right? Everybody might need a Redis with certain scaling, auto scaling setup for caching. Someone would need Postgres database, right? So the platform in DevOps engineering platform वाला team would set up these things as a common thing, and सब लोग बस start कर सकते हैं. पर ये वाला वक्त तो एक तरह से थोड़ा ये भी होता है कि ऑफिस में एक सिस्टम टीम है जो लाइब्रेरीज लिख रही है, जैसे जो कॉमनली यूज लाइब्रेरी हैं, तो वो भी उसको भी हम प्लेटफॉर्म इंजीनियर. हाँ, तो ये थोड़ा बाउंड्री फजी हो जाता है. द वे आई वुड डिफाइन इसलिए इज कि जहाँ पे भी दैट प्लेटफॉर्म गेट्स रेगुलर ट्रांजैक्शन, है ना, एंड लाइब्रेरी इज समथिंग वेयर यू जस्ट टेक इट अप एंड स्टार्ट रनिंग. प्लेटफॉर्म इज सॉर्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन में इट्स इन्वॉल्व, एवरी डेटा ट्रांजैक्शन दैट यू आर हैविंग, योर the platform that you're building is involved in it. It's not, it's just abstract. ऊपर रन कर रहे हो, आप उसे यूज नहीं कर रहे. Correct, right? So like AWS would define platform engineering के लिए, उनके लिए EC2 is a very good platform जिसपे लोग अलग अलग products run कर रहे हैं, but everything you would run would go through that EC2.
right? But उनका cloud formation SDK is just a library जिसके through you orchestrate things. तो ये DevOps वाला एक platform engineering है. Then एक delivery का जो platform engineering example है, which a lot of other companies also would do, is कि हम similar kind of multiple business line run करते हैं, and each teams would have their own tech teams, they would build certain products, but वो products में बहुत commonality है, right? जैसे कि सबको किसी न किसी तरह का ऑथेंटिकेशन चाहिए. द लॉग इन फ्लोज माइट बी डिफरेंट, कहीं पे किसी को मोबाइल लॉग इन बनाना है, बट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड. सो यू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लेयर विच एवरीवन विल यूज, एंड एवरी टाइम समवन लॉग्स इन वो फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है. सो एवरी टाइम समवन is starting a business, उनके लिए building a login authorization authentication system should be very smooth. The only thing they have to worry about is the end feature of how they want to their user to interact. इस SAML login करना है क्या, Google वाला login बना ले, and वो custom development थोड़ा उनका developer कर सकता है. So it also sort of reduces your go to market time, and it also prevents you from doing reinventing difficult things like authentication authorization are hard things. You if you get things wrong, security risk है. And also you have to manage 5 teams who are responsible for security of 5 different login systems, right? So एक वो वाला second platform engineering where you build common things for your entire company जिसमें हर transaction would flow through those, and these are sort of internal products, right? And a lot of Silicon Valley companies have internal product managers now who would manage these platform products internally, right? Netflix would have certain whole teams around products and engineers who would just build for their engineers inside, right? Uber would have a team who would just build systems which other engineers would use to build certain products. So कल को Uber Eats बनाना है तो they don't have to reinvent the whole thing around everything, right? So this is the second मैं aspect. अगर Geekstories के रेफरेंस में सोचूं तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर हमें प्लेटफॉर्म बनाना है तो we publish a lot of content on Geekstories, we have practice problems, we have comments coming in, so we would need a platform which does the validation of the content, maybe external link तो नहीं है, spam तो नहीं है, profanity check करना है. So there can be a platform on top of which you can process all the content. Correct. So one way you can do, non-platform way would be doing is that you would build smaller tiny modules. एक जो कि आपके कमेंट सेक्शन का अच्छा स्पैम और ये सब वेरिफिकेशन करता है. एक और छोटा मॉडल जो कि शायद आपके पब्लिक शेयरिंग का कुछ एनालाइज करता है और उस पर वो कंटेंट मॉनिटर कर रहा है या उसका कुछ देख रहा है. बट अ प्लेटफॉर्म वे वुड बी कि बिल्ड अ जनरल फिल्टर मैकेनिज्म, और उसमें कुछ मेथड्स दे दिए आपने या फिल्टरिंग दी है जो कि comments team can use it differently to fine tune it and use it differently, and the other team can use it slightly differently, right? All right, I got it now. So next question is, I am a say fresher or I have worked for 1 or 2 years. I see a lot of job profiles where I see platform engineer required. So how do I prepare for it, and what do I expect in the interview, like, and is there any roadmap for preparation? Yeah, so there's no specific interview prep. I think the only rule which I think will valid for others as well is that when you hire platform engineers, apart from their basic coding skills, a lot of focus goes on that how good problem solvers are they, right? In general, even if you give them a simple problem, non-coding related, are they able to come up with solutions? Because a platform, at the end, if you are a platform engineer, you sort of have some overlapping world with a product, right? Because there is no one going, a product manager might not be that technical, and now you have to understand that what you can build which can serve more than one use cases. So you might have to end up talking with people, what is your use case? Comment teams is building something, okay, what kind of things you want to use as filter, what is profanity for you? Some other team is building some other things, and what my machine learning model can help you with it, right? So you want to understand all the use cases, and can you come up with a problem statement and a solution, right? So a lot of interview processes, if you look at platform engineering interview process, you emphasize on a lot of problem solving. You would not look for very people who are very optimized in certain way, but they would be very good in terms of thinking how a generic problem can be solved, and they often step back and look, is that capability that if I'm given them one particular use case, are they able to ask good enough questions कि यार ये भी problem तो नहीं आएगा इसमें, right? So वो हमेशा, are you able to ask the right questions, and that is the preparation that you want to do. Is that if you read any simple like Geek of Geek पे मैं जाके कोई problem statement पढ़ लिया कि ये coding problem लिखा हुआ है, if you are as a developer, if you are able to imagine कि इसका practical sense क्या होगा, ये code क्यों ही लिखना है मुझे. A lot of times candidates often complain कि यार ये मेरे से coding interview में array क्यों sort करा रहे हैं, मैं कभी करूँगा नहीं. The same joke कि trigonometry क्यों पढ़ा रहे हैं, maths कभी काम का नहीं था. But then people miss out कि जब actual code लिखने जा रहे हैं, कल को एक limiter लगाना है कि comment में इतने ही words लिखने हैं. Half the people struggle with कि word का definition क्या है, कब break करेंगे, right? तो वो question, the apart from the basic tech, I think preparation wise when people see
you should be very open towards what you're building, उसका awareness कितना है, are you able to ask the right questions. So वो articulation and understanding is very important. तो मेरे से तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो एक क्वेश्चन होता है कि सर हमसे ना कंपनीज के इंटरव्यू में ग्राफ के डायनामिक प्रोग्रामिंग के इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इंडस्ट्री में इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लोग केयर करते हैं कि नहीं इसे लॉगिन में ही करो, इसे अनलॉगिन में ही करो, और डीपी का टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जब मैं एक्चुअल डेवलपमेंट करता हूँ तो क्या एक्चुअली इतना यूज़ होता है? हाँ, इस पे थोड़ा मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, क्योंकि पर्सनली करेंटली द रोल्स दैट आई हायर फॉर, उस पर मैं इंटेंशनली अब ग्राफ नहीं पूछता हूँ, बिकॉज हमारा कोई ऐसा यूज़ केस नहीं है. एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स जो कि एक सर्टन इंडस्ट्री में काम करते हैं, एंड उनके लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सेंस बनते हैं. इनफैक्ट आई हैव सम फ्रेंड जो कि इस तरह के स्केल और नेटवर्क लेटेंसी पे काम करते हैं, जिनके लिए लॉग इन इज़ नॉट इवन गुड इनफ, एंड उनका डेली बिजनेस लॉस हो जाएगा. तो उनके लिए इस इंटरव्यू में पूछना इज बिकम्स वेरी वैलिड, एंड मेरे लिए उतना नहीं वैलिड हो जाता है. मेरे लिए कुछ सर्टन अदर स्किल्स हैं और कोड लिखना आना चाहिए, बट आई वुड स्टिक टू मे बी स्ट्रिंग्स, मेट्रिसेस, 2D एरेज एंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि मेरे लिए वो डे टू डे यूज़ में मैं देख पा रहा हूँ कि वो है. बट एक सर्टन स्केल पे सब हर कंपनीज का कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, टेक वाइज चैलेंज होगा, आपको एक सर्टन ट्रैफिक आएगा, उसके बेसिस पे, एंड दैट ट्रैफिक कुड बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और मे बी जस्ट अदर, कि इंटरनली बहुत कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, लोग पढ़ भी नहीं रहे, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम है आपका, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो क्वेश्चंस शुड, मेरे हिसाब से, शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. थोड़ा वो हो गया कि इंटरव्यूअर्स वांट टू हैव अ रिलैक्स वे, तो वो जल्दी से सर्च करते हैं, और ये पॉपुलर क्वेश्चन चल रहा है तो ग्राफ पूछ लेते हैं. हाँ, तो मैं if I pick a question somewhere, even अगर geek for geek से भी pick किया है, तो I would always change it slightly. Okay. And I have had cases with me कि अगर वो मैं change किया है, kind of to start solving blindly, and then they would end up into trouble क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है ध्यान से. And तो I would switch it थोड़ा. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके, मैं डी शो करके एक सॉफ्टवेयर हैश फंड है उसमें था. Yeah. तो मेरे को जो फीडबैक दिया था उस कंपनी ने, मैंने वहाँ पे 2.5 साल काम किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार तुम ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, कम बिजनेस में ना टाइमली डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है. मतलब आई वाज लाइक कि मैं इसको लॉग इन में ही करूँगा, लीनियर में करूँगा, एंड दे वर लाइक कि इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है भाई, इसको पहले बिजनेस इज ऑलवेज द टॉप प्रायोरिटी. तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो वो भी समझना ज़रूरी है कि ठीक है ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले आप डिलीवरी करो, वो यूज़ तो हो प्रोडक्ट. तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है शायद, मतलब कंपनी के लिए. अग्रीड. इसीलिए मैं कह भी रहा था, जैसे इवन प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में जब आपको बोला गया कि एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है, तो एज ए इंजीनियर यू शुड बी एबल टू आस्क इसका यूज़ केस क्या है ना. वन ऑफ माई प्रोफेसर यूज टू गिव अ वेरी फनी एग्जाम्पल कि आप इंजीनियर्स हो, आपको टेबल बनाने दिया गया है, श्योर एज ए इंजीनियर आप एकदम स्टर्डी टेबल बना दो कि हाथी भी बैठ जाए, बट दैट माइट नॉट बी नेसेसरी डे वन. मे बी जब हम वाइल्ड लाइफ में कुछ बनाना चाह रहे होंगे और जब वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी तो हम शहर के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा टॉलरेंस रख लो एंड वो जल्दी बना लो, एंड इवेंचुअली बिकम गुड एट टेबल मेकिंग, एंड मे बी कल को किसी ऐसा ह्यूमंगस टेबल बनाने का अपॉर्चुनिटी बना, तब यू विल एक्सप्लोर एंड लर्न मोर अबाउट. सो द आइडिया इज कि यू बिल्ड स्केलेबल थिंग्स एंड नॉट स्केल्ड थिंग्स. तो मेरा नहीं है, बट हाँ, बट दिस इज ऑलवेज रेजोनेट्स कि दिस ऑलवेज यू यूज एज अ जनरल फंडामेंटल. तो करना पड़ेगा जो आप कह रहे थे कि ऑप्टिमाइजेशन, बट वो आएगा, उसका भी टाइम आएगा. पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट समझो, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको पहले बिजनेस सर्व करना है. Correct, correct. इंपॉर्टेंट वो है, बाद में ऑप्टिमाइजेशन बस चीजें आएंगी बाद में जब स्केल हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू. तो आपने इंडिया में भी काफ़ी काम किया है, उससे पहले आप दुबई में थे, तो आपको यहाँ के वर्क कल्चर में, यहाँ के वर्क स्टाइल में, यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में क्या डिफरेंस दिखता है वहाँ के और यहाँ के, दुबई में और इंडिया में? हाँ, दुबई वॉज अ वेरी डिफरेंट कल्चर वैसे मेरे हिसाब से. आई थिंक चूँकि अब मेरे सिलिकन वैली में काफ़ी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज बैकग्राउंड, एंड देन एवरीवन वांट्स लव्स टू वर्क आउट ऑफ सिलिकन वैली, तो तीनों का अगर कंपैरिजन भी करें तो दुबई इज़ अ वेरी डिफरेंट कल्चर, की टेक कल्चर नहीं है वहाँ. सो वहाँ पे प्राइमली सेल्स ड्रिवन कल्चर है, विच इज वर्क्स वेरी वेल फॉर देम. मतलब 70s या इवन बिफोर से वो एक पोर्ट सिटी रहा है, तो दे सेल्स उनके लिए बड़ा ही गोल्डन आम रहा है, जैसे सिलिकन वैली के लिए टेक बड़ा ही गोल्डन आम रहा है, तो दे ऑलवेज बैंक ऑन. तो हर कंपनी हमेशा ये सोचती है कि उनके लिए प्रॉफिट सेंटर कौन सा है, कॉस्ट सेंटर का है. तो मिडिल ईस्ट में यू विल ऑफन सी कि सेल्स बिकम्स द प्राइमरी फोकस, टेक इज सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड कि इनसे बस जो चाहिए वो ले लो. तो वो कल्चर उस तरह से ही हो जाता है कि एक प्री डिफाइंड वर्क आ रहा है, वो आप कर रहे हो, तो पीपल नेवर चैलेंज क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इट. इंडिया हैड अ इंटरेस्टिंग स्टार्ट, अब थोड़ा इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट वे, बट क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री वॉज समथिंग दैट किक्ड ऑफ, तो यहाँ पे शुरू में वैसा वाला था स्टेटमेंट कि क्लाइंट जो बोल रहा है, ऑब्वियसली क्लाइंट्स, हाँ,
तो वो करना है, तो पीपल वुड लर्न एंड अपस्किल बेस्ड ऑन दोज क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स. बट अब एज ऑफ टुडे एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एंड हम आई वुड स्टिल वांट टू कॉल कि इंडिया की टेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ वेरी यंग. है ना, मेरे को 10 साल हो गया पास आउट होने में और 10 साल नहीं हुआ है ज़्यादा. बट थैंक्स टू गाइस लाइक यू, डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब यहाँ पे काफी टेक में इनोवेशन होने लग गया है. एग्जैक्टली माई पॉइंट राइट, कि अब चेंज हो रहा है. एंड नाउ इफ एट लीस्ट एज वाइज कंपेयर करें तो नाउ यहाँ पे वो कल्चर आने लगा है कि टेक को एज अ प्रॉफिट सेंटर देखा जा रहा है कि दीज गाइज कैन ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू एंड टेक हैज अ लॉट ऑफ पावर राइट. हम कुछ कोड लिख देते हैं, दैट कैन इफ दैट गोज एक्सपैंड्स, वही सेम कोड कैन सर्व मिलियंस ऑफ यूजर एज वेल. वही बिजनेस यूज केस मल्टीपल लोगों पे हो सकता है. एंड इसीलिए टेक हैज दैट लेवरेज एंड वो अब धीरे धीरे मतलब काफ़ी टाइम से हो गया, अभी तो नया भी नहीं, बट रियलाइजेशन होने लगा है. नाउ यू सी बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, दीज ग्रोइंग अप एज टेक सेंटर्स बिकॉज ऑफ दिस राइट. तो एक और चीज़ है, जब मैं वहाँ पे था डी शो में, तो मेरे साथ के उनका एक यूएस ऑफिस था, एक इंडिया में ऑफिस था, और भी जगह होंगे. तो वहाँ पर हमारा जो इंडिया ऑफिस था, हमें जनरली यूएस से रिक्वायरमेंट आती थी, हम वो बिल्ड कर देते थे. और ऑफिस में ज़्यादातर लोगों का ऐसे होता था कि यार मुझे यूएस ऑफिस में शिफ्ट होना है, और वो भी मतलब जो सबसे अच्छा कर रहा होता था उसको पिक करके यूएस ऑफिस में बुला लेते थे. अभी जैसे आप थोड़ा मेरे रिलेटिवली लेटर स्टेज में आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया और अभी रिसेंटली काफ़ी इंजीनियरिंग काफ़ी क्लोज रहते हो, तो आपको क्या लगता है ये कल्चर अभी भी है कि लोग यूएस जाना चाहते हैं, या फिर अब थोड़ा डिफरेंस आया है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे को लग रहा है अभी भी है. मतलब श्योर कुछ लोग जैसे मतलब मैं तो एकदम ही वो नहीं, आई नो सम फोक्स हु हैव मूव्ड बैक फ्रॉम यूएस और यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हैं. वो एक डिफरेंट मोटिवेशन है कि मेरे को अब खुद का कुछ करना है, तो वैसे लोग यहाँ मूव कर रहे हैं. बट एटलीस्ट जिनको जॉब करना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग अ जॉब राइट. आप किसी लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको भी लोग एम्प्लॉइज तो चाहिए चाहिए. उस केस में आई डोंट थिंक उतना ब्रॉडर चेंज आया, एटलीस्ट अभी जितना दिख रहा है कि जिनको भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे वुड क्विकली मूव आउट. एंड देयर इज अ रैशनल टू इट. वो इंडस्ट्री और मेच्योर हो गई है वहाँ पे, इकोनॉमी वाइज देयर इज मोर फंडेड एंड मोर रिस्क टेकन कि यार लोग नया एस्पेक्ट शुरू कर लो राइट. तो देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क फ्रॉम, तो वो अभी भी है टेंडेंसी. बट होपफुली अब ये हो रहा है कि एटलीस्ट जिसने वो एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं सोचा है, तो यू कैन स्टिल गेट दोज टैलेंट यहाँ पे. एंड अगर वो आप इस इंडस्ट्री में 2-3 साल इंडिया में काम कर लिया, देन इट्स अ डिफिकल्ट. अगर उसने ये वाला स्टार्टअप वाला क्योस देख लिया होगा, फिर आपको नहीं दिखेगा कि वो लोग जा रहे हैं. फिर यू वुड आस्क देम, वो दे विल से कि हमें रिमोटली हायर कर लो. एंड वो अब ट्रेंड दिख रहा है. अभी आप यूल सी अ लॉट ऑफ यूएस कंपनी नाउ हायरिंग रिमोट यहाँ के लिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टअप देम. का जर्नी अलग ही होता है. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, आप इस जर्नी का पार्ट रहे हो स्टार्टिंग से, और फिर आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि टेक कितना अच्छा है, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो. दैट इज अ वेरी डिफरेंट रश कि आपने कुछ बनाया और वो अब यूज होता दिख रहा है. सही में इसकी मतलब किसी ने कुछ खाना बनाया और अब सब लोग टेस्ट कर रहे हैं तो तारीफ कर रहे हैं. लिए छोटे छोटे उस प्रोडक्ट को लेके, जैसे आपने डिलीवरी में बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, आपको इतना टाइम हो गया है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट डिसीजन जो आपने बनाए होंगे वो इतनी सारी जनता यूज कर रही है, वो अलग ही फीलिंग है. करेक्ट वेरी ट्रू. तो वो तो है, दैट इज आई थिंक, एंड दिस इज वेयर थोड़ा अब दिख रहा है पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ इट कि अब देर इज नेवर अ चैलेंज इन इंडिया राइट नाउ कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का टैलेंट चाहिए, वेदर श्योर एक पूरा ऑप्टिमाइज वाले लोग या एक डीप टेक में डाइव करने की. मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए हु कैन बिल्ड देयर ओन डेटाबेस लेट्स से, और एक जेनरिक वेबसाइट भी बनानी है. देयर इज अब अभी हायरिंग वाइज चैलेंज नहीं हुआ आपको. एज लॉन्ग एज यू हैव द डीप पॉकेट्स यू विल फाइंड द राइट पीपल. एक टाइम था कि जब एक पर्टिकुलर सेट के स्किल ही लोग नहीं मिल रहे थे हमें, हायरिंग वाइज सो डिफिकल्ट था. आई रिमेंबर 16-17 में वी वर ट्राइंग टू हायर समवन हु वुड नो वेरी इंटरनल्स ऑफ एंड्रॉइड बिल्ड्स एंड यू टॉक टू पीपल, तो जिससे भी बात करो तो यार इधर सिटिंग इन यूएस एंड इंडिया में दे वुड जस्ट बिल्डिंग एप्स एंड वो टैलेंट बिल्ड नहीं हो रहा था यहाँ पे. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स. अब लोग मिल जाएंगे जो कि एंड्रॉइड के कोड बेस में कमिट कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल इन इंडिया. तो अब है दिस सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग अप व्हिच इज गुड. ऑलराइट आशीष, तो मेरे अगले 2 क्वेश्चंस हैं आपसे. एक तो ये है कि टेक के लोगों की जनरली सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब मैं भी फाउंडर हूँ एक कंपनी का, तो आई नो इट रियली कि टेक के लोगों को जनरली ज़्यादा सैलरी मिलती है बाकी लोगों से. दूसरा ये है कि जैसे ले ऑफ हुए हैं, तो हमने टेक के काफ़ी सारे ले ऑफ सुने, तो आपको लगता है कि ज़्यादा सैलरी होने की वजह से टेक के ज़्यादा ले ऑफ भी होते हैं? हाँ, पहले ये लेट्स टॉक कि टेक पे ज़्यादा सैलरी क्यों लग रहा है. आई थिंक एटलीस्ट मुझे दिस डजेंट सीम मोस्ट एक्यूरेट. इवन यूएस में या इंडिया में अगर आप सैलरी के रेंजेस देखो टेक में, श्योर बाकी बिजनेस रोल से मे बी हायर होंगे, बट सेम वही हिस्टोरिकली जब हम जॉब प्रेप भी कर रहे थे कॉलेज में और लोग से पूछ रहे थे किसमें सबसे ज़्यादा पे आउट मिलता है, तो एवरीबडी वांटेड कि यार हम वॉल स्ट्रीट पे हेज फंड में ज्वाइन कर लें राइट. इन्वेस्टमेंट बैंकर वॉज एक बिग जॉब लुकआउट, क्योंकि बहुत हाई पेज थे राइट. एंड जनरली रीजन क्या था कि यू नीड टैलेंटेड पीपल जिनकी एक सर्टन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर वेरी गुड, एंड उनको पैसा दे दो वो कर लेंगे काम राइट. एंड वो काम सबके लिए वॉज नॉट ईजी. सेम टेक हैज़ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स
कि the difficult majority of tech is a black box for a large mass, right? People don't understand it. People don't know how to enter it very easily. Sure, अब mediums आ रहे हैं, Geek for Geek is one of them, कि how to reduce that barrier of entry. जहाँ भी barrier of entry कम होगा वहाँ पे pays हमेशा कम होंगे because everyone can be replaced easily. But जहाँ पे भी replacements are very difficult और आप replacements are difficult तो pays become higher. So कोड करना इतना आसान भी नहीं है. हाँ, टाइमली डिलीवरी करना. करेक्ट. एंड एवरी टाइम यू गेट, एंड जैसे डिलीवरी में आपने कुछ कोड लिखा और वो गलती से देयर सम ब्रेकेज, किसी एक एम्प्लॉय जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, हु हैज अ वेरी बेसिक सैलरी, वो ब्लॉक हो जाता है, उसका डे का पे आउट इफेक्ट हो सकता है, या आपके एक मिस कैलकुलेशन से उसके पेमेंट का फैक्टर ही चेंज हो सकता है, राइट? तो देयर सर्टन रिस्क अटैच्ड टू इट. तो कुछ केसेस में इसलिए पेज आर हायर, एंड इसलिए आप देखोगे भी कि सर्टन पूरी टेक इंडस्ट्री में पे स्केल हर रेंज में होता है. आपको एक एंड्रॉइड डेवलपर काफ़ी लोअर सैलरी पे मिल जाएगा इंडिया में, एंड यू हायर अ वेरी एक्सपेंसिव iOS डेवलपर एज वेल एंड एंड्रॉइड डेवलपर्स एज वेल, राइट? तो ये रेंज है, एंड आई थिंक सैलरीज हाइज एंड लोज हैं. आई थिंक बट अगेन द ब्लैंकेट कम्स की कुछ जगह हाई हो गई है तो सब लोग अब हाई डिमांड करने लग जाते हैं. जैसे एक सर्टन चीज़ का कॉस्ट बढ़ गया है मार्केट में, हम कुछ ग्रोसरी कंज्यूम कर रहे हैं तो अब सब लोगों ने हाई कर दिया है, राइट? मुझे ये नहीं भी लगता है, जैसे हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, गूगल का, अमेजोन का, ये जो टेक कंपनी है मेटा, इनका जो ग्रोथ हुआ बहुत ज़्यादा, और वो इंडिया में भी ऑफिसेज हैं उनके, मतलब तो जैसे मुझे पर्टिकुलरली बीइंग अ टेक फाउंडर, मुझे बहुत चैलेंज आता है हायरिंग करने में. Correct. जो लोग आ भी जाते थे, अभी तो चलो फिर भी थोड़ा साल थोड़ी जॉब से वो रिलेटिवली कम हो गई है, इतना मुश्किल नहीं है. एक टाइम पे क्या होता था कि लोग ज्वाइन भी कर लेते थे, वो सब लोग तैयारी कर रहे होते थे, अमेजोन की, फेसबुक की, गूगल की, तो ये भी उन कंपनी की वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हाँ, वो पैरिटी फैक्टर के लिए, क्योंकि वो यूएस में बैठे हैं तो उनके लिए दैट कन्वर्जन फैक्टर में मनी उनको लिए कॉस्ट कम करना है, बट वो इंडिया में तब भी हायर पे कर पा रहे हैं. तो दैट क्रिएट्स अ डिस्ट्रप्शन, एटलीस्ट हमें भी अभी दिखता है हायरिंग में, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि टैलेंट वाइज वी वुड नो कि दिस पर्सन इज वेरी गुड, बट द डे डिलीवरी गिव्स देम एन ऑफर, somebody would know कि डिलीवरी ने दे दिया तो they would have evaluated, right? And they would up that offer because they have that dollar money conversion rate. ये प्रॉब्लम है, and I'm not sure इसका कुछ immediate solution आएगा until this Indian companies start becoming very big, मतलब more than a handful that there are now right now. If Indian companies start becoming very widespread, तो हम we would be able to set up the market rates, right? तो वो हो जाएगा, but I think अभी post pandemic we often have already have started seeing salary correction, Right. even तो but ले ऑफ्स वाले पे भी आ जाते हैं. आई थिंक वो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं, बट रिलेटेड इस तरह से कि एक कंपनी है, यू रन स्टार्टअप्स, तो देयर वुड बी फेजेस जहाँ पे आपको एक सर्टन कॉस्ट हाई लो हो रहा है, एंड यू वुड हैव टू मैनेज योर बैलेंस शीट, राइट? कि ये अब सडनली इफ देयर इज अ इकोनॉमिक स्लो डाउन कमिंग, सो एवरी कंपनी वुड वांट टू स्लो देयर बर्न, राइट? दे वुड वांट टू स्पेंड लेस मनी. सो अब जिसको कम सैलरीज मिल रही हैं, जहाँ भी कम खर्चा हो रहा है, उसको बचा के कुछ नहीं मिलने वाला है ना. अगर आप 5 इंजीनियर्स हायर कर रहे हो और 100 ऑपरेशन के लोग काम कर रहे हो, वो 100 की सैलरी हमेशा कम है, तो उनमें से 50 लोग निकाल भी दोगे तो कुछ ज़्यादा सेव नहीं होगा, बट इस इंजीनियर से 2 को निकाल दोगे तो बहुत मैसिव सेव हो जाएगा, है ना? और वो 2 निकाल के शायद तुरंत इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एक सर्टन प्रोडक्ट अप एंड रनिंग है. श्योर थोड़े डिस्ट्रप्शन होंगे, लाइक पीपल टॉक अबाउट देयर बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ट्विटर को इतने लोग चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, इतने हटा भी दिए तो भी चल रहा है, एंड देन देयर आर अदर साइड ऑफ स्टोरी कि नहीं चल नहीं रहा, आप छोटे छोटे बग्स नहीं देख रहे हो जो कुछ कुछ यूजर्स को आ रहे हैं. देयर आर बोथ साइड ऑफ द स्टोरी, राइट? बट देर इज अ वे, एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सीनियर लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, कि उधर कॉस्ट रिडक्शन बिकम्स ईजियर बिकॉज लेसर लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, एंड देन दे गेट. बट इसका एक काउंटर भी है, मतलब इसका जैसे ऑपरेशंस का कोई पर्सन जाता है, ही इज वेरी इजी टू रिप्लेस. आप मतलब ऑपरेशंस का बंदा जाता है, आप दूसरे बंदे को हायर करके 2-3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में ट्रेन करो, वो सीख के वो काम करने लगेगा, उसे रिप्लेस कर देगा. लेकिन टेक के लोगों ने वो कोड लिखा होता है, उनका जर्नी होता है, पता नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि काउंटर भी ऐसा कि उनको रिप्लेस करना इज रिलेटिवली डिफिकल्ट. अगेन गोज बैक टू द सेम पॉइंट, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री इज इतना हायर ना, तो अब डिफिकल्ट. इसीलिए आप देखोगे कि ले ऑफ्स हमेशा एकदम एक सर्टन टीम्स के होते हैं कि यार ये फंक्शन बंद कर दो, कि ये रिवॉर्ड्स वाली टीम थी, ये जो टेक बना रही थी, ये वाला प्रोडक्ट स्लो भी चलेगा तो दैट इज ओके. वो एक रीजन होता है कि आपको भी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए. हाँ, एंड दैट इज हाउ यू डिसाइड, राइट? अदरवाइज अब ब्लैंक इंजीनियर्स ले ऑफ्स नहीं सुनोगे कभी, इवन द मास ले ऑफ्स दैट हैज हैपेंड, और आप डीप डाउन देखने जाओगे कि कौन कौन टीम्स हुई हैं, तो यू रियलाइज कि वो उनके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा था टू इन्वेस्ट मोर एंड कॉस्ट बचाना था, तो दैट इज हाउ दे डिसाइडेड. सो आई थिंक नंबर ऑफ अमाउंट सैलरीज बहुत हाई हैं, इज करेक्ट, एंड इट बिकम्स ईजियर कि मैसिव सेविंग तुरंत दिख जाता है. द नॉइज बिकम्स मोर बिकॉज जिनकी सैलरी ज़्यादा है, दे हैव मोर विजिबिलिटी, तो दे कैन ऑफन sort of create more news out of it. But I'm very sure non-tech wise भी लोग उतने ही lay off होते हैं, they get more impact, but voice is not heard. टेक के लोग थोड़े सोशल मीडिया पे रेडिट वगैरह पे बहुत एक्टिव हैं, तो वो थोड़ा हाँ, हमारा ही बनाया हुआ है, तो we know how to game that system and शेयर get भी that. ज़्यादा करते हैं कि मैं ले ऑफ हो गया, मतलब
और नॉन टेक लोग जनरली मैंने देखा उतना शेयर भी नहीं करते हाँ हैं। विच इज एक उसका ब्राइट साइड भी है एटलीस्ट टेक में इफ यू आर लेड ऑफ इट्स नॉट सीन एज अ बैड थिंग राइट आपको एक कोई अच्छा रेज्यूमे आया एंड यू नो दैट इज लेड ऑफ इवन एटलीस्ट फॉर मी आई वुड नॉट हेजिटेट टू हायर दैट पर्सन और इंटरव्यू दैट पर्सन एटलीस्ट राइट बट किसी और इंडस्ट्री में इज लुक्ड एज अ टेबू कि यार इसके ही वॉज लेड ऑफ एंड इट बहुत ही वो है एंड आपको ये दिखेगा भी ऑनलाइन पोस्टिंग्स में तो एटलीस्ट मेरे को टेक इसलिए हमेशा से पसंद रहा है कि इट्स वेरी डेमोक्रेटाइज अब ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आई कांट कंट्रोल Because they are not easy to replace. They are talented people. They Right. work. They know the business logic. Also, they've seen the software Correct. history की कैसे बना, क्या logic क्यों लिखा गया. So they are always valued for that reason. करेक्ट एंड ऑफन टाइम्स यू सी कि जो इंजीनियर्स हमेशा से लॉन्ग रनिंग चल रहे होते हैं एक जगह पे इवन इफ दे स्विच जॉब्स बट दे आर नॉट लेड ऑफ इज दे आर एबल टू स्विच कंटेक्स वेरी फास्ट राइट कि यार ये हिस्टोरिकल था मैं ये लेके आई प्ले विद इट गेट समथिंग रनिंग एंड कंटेक्ट स्विचिंग बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं तो दोज इंजीनियर्स आर वेरी वेल सर्वाइव इन दिस हार्ड वर्ल्ड ऑफ इज Alright, Ashish. So my next question is: these days we see that a lot of companies are asking people to come back. Those who were doing remote work from home during pandemic. And so, what is your opinion about it? I mean, is it the right step for the companies? And what is the difference between work from because you have been managing tech team, right? तो work from home और work from office में productivity में कोई difference आता है या company ये decision क्यों ले रहे हैं? नहीं एटलीस्ट गिवन आई एम एन एक्स फाउंडर आप अभी यू आर रनिंग अ कंपनी सो वी वुड अग्री ऑन सर्टन पार्ट्स की वर्क फ्रॉम ऑफिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर गेटिंग बिजनेस अप एंड रनिंग मैं आता हूँ कि टेक के लिए क्या है एंड वाई पीपल वांट टू डू इट और नॉट इज अ सेपरेट स्टोरी इटसेल्फ बट एटलीस्ट एज अ बिजनेस इट वेरी मच हेल्प्स अगर सब लोग एक लोकेशन पे साथ में काम कर पा रहे हैं एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स के लिए वेल श्योर एंड हिस्टोरिकली भी आपने मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया है रन किया है और अभी भी कर रहे हैं किसी दिन कोई कुछ हो गया एंड दे वांट टू वर्क शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा होगा मेरे को लगता है कि आज मैं एक दिन थोड़ा ये कर लूँगा बिकॉज सम इंपॉर्टेंट वर्क है बट नहीं आ सकता हूँ मैं दैट इज़ ओके बट एक परमानेंट रिमोट वर्किंग डज नॉट वर्क इन अ फास्ट पेस इन्वायरमेंट मेरा जो अभी तक एनालिसिस रहा है एंड एटलीस्ट इंडियन कंपनी जो हम अभी काम कर रहे हैं एंड यूएस में भी जो कंपनीज नाउ आर देयर टर्निंग अगर आप उनका कल्चर देखोगे तो दे आर वेरी फास्ट पेस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी फास्ट लॉट ऑफ स्मॉलर डिसीजन आर मेड ऑफन एंड उसके बेस पे कुछ ना कुछ ट्रैक शुरू हो जाता है कि ये नया चीज़ बनाना है या कुछ नया डेवलपमेंट करना है या सम न्यू एनालिसिस हैज़ टू बी डन राइट और सम न्यू डिस्कशन हैज़ टू हैपन तो वो रिमोट में देयर इज ऑलवेज अ लैग क्योंकि वही जैसे एपीआईज लिखते हैं हम तो सिंक वाली बात होती है कि तुरंत रिस्पॉन्स आ गया थोड़ी देर बाद आएगा बाई डिफ़ॉल्ट कितना भी कोशिश कर लो अगर कोई रिमोट है तो एवरीथिंग इज एसिंक क्योंकि आप पहले उसको पिंग करोगे ईमेल लिखोगे कि अभी हो गया है ना और एक सर्टन डिले ऐड हो गया है तो हमेशा एज अ बिजनेस एंड इवन एज अ टेक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गेटिंग थिंग्स आउट देयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रन थिंग्स आउट राइट आइडियली एक कोई ऐसा कंपनी होता है जिसमें हमें सब कुछ पता है अगले एक साल क्या करना है सबके रोल्स वेल डिफाइंड है तो परफेक्ट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबके लिए बेस्ट होगा सैलरीज बच जाएंगी ऑफिस का स्पेस का ट्रेंड बच जाएगा बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे तो बेस्ट है बट वो है नहीं एंड दैट विल नेवर बी ट्रू फॉर एनी बिजनेस तो इसलिए आई थिंक मोस्ट बिजनेसेस वुड टेंड टुवर्ड्स कि यार एटलीस्ट हाइब्रिड नहीं तो रेगुलर ऑफिस और इफ नॉट हाइब्रिड तो कर ही लो मुझे भी पर्सनली वर्क फ्रॉम ऑफिस काफी अच्छा लगता है मतलब मुझे कोई यूजर का फीडबैक आया ईमेल पे या लिंक्डइन पे किसी ने मैसेज किया हाँ. और मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तो आई विल इमीडिएटली गो टू माय मैनेजर द पर्सन हु इज मैनेजिंग द प्रोडक्ट I'll just go and ask him and I'll just see if other people are also available. I'll ask the non-tech team or marketing team also would it work and if everybody agrees we immediately decide to work upon. वो ब्रेनस्टॉर्म कर पाते होगे आप अब वो तुरंत easily ही कर पाते हो सब एक कैबिन में बैठ के आराम से डिस्कस करके you can make the decisions quickly. करेक्ट तो इट हेल्प्स अ लॉट तो मतलब इवन टेक वाइज भी मतलब काफ़ी बार यही लोग बोलते हैं कि यार मैं तो टेक में मुझे कोड ही लिखना है व्हाई डू आई नीड टू कम टू ऑफिस प्रॉब्लम इज कि देयर इज नेवर अ 1 month काइंड ऑफ कोड राइटिंग एक्टिविटी आजकल की इंडस्ट्री में भी डू कि ये 1 महीने चलता रहेगा तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप इवॉल्विंग सेकेंडली एटलीस्ट सो फार आई हैव वर्क जितना भी यार मेरा ऑलवेज इंटेंशन इज कि वॉट एवर कोड आई राइट उसका कुछ बिजनेस वैल्यू होना चाहिए सो अगर मैं ऑफिस में आके कोड नहीं लिख रहा हूँ तो आई डोंट गेट टू अंडरस्टैंड एक्चुअल बिजनेस यूज केस आई एम नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद दोज फोक्स मेरा जनरल स्ट्रगल होता था ड्यूरिंग पैंडमिक आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइन डिलीवरी एंड फिर पैंडमिक में ऑफिस बंद थे एंड एटलीस्ट ओनली 3-4 people were coming to deliveries office one me Kapil our CTO my immediate manager and one more person and we forced because you're building something new and मेरे को लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता है आई हैव जीरो नॉलेज एंड ऑब्वियसली नहीं पता होगा एंड दैट इज नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टेड बट आई आस्क कि यार आप लोग भी आ सकते हो क्या अदरवाइज मैं ये कुछ भी लिख दूंगा मेरे को क्या जा रहा होगा कोड लिखने में
या लिखवाने में भी, बट आई डोंट गेट दैट कंटेक्स्ट. तो पीपल वुड कम एंड इट बिकेम सो ईजी. मेरे को एक हफ्ते में वो पता लग गया जो मैं पिछले एक महीने से, जब मैं मुंबई था एंड आई वाज वर्किंग रिमोटली ड्यूरिंग पैंडेमिक, आई वाज जस्ट क्लूलेस. मैं बस हवा में डॉक्स लिख रहा हूँ, ये कर सकते हैं, मुझे फूड डिलीवरी के बारे में कुछ पता है, मैं जार्गन बता रहा था. बट वो एक महीना और एक हफ्ता वॉज वेरी डिफरेंट. तो और वो बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव हो गया. एंड दैट्स even from a code writing point of view, shipping point of view, getting feedback point of view. So yeah. पर्सनली मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया कोविड में, हमारा रिमोट वर्क मजबूरी हो गई थी. मतलब आई नेवर लाइक वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली. चाहे वो मेरी एज ऐसी हो गई, वो एज गैप है जब आजकल की जनरेशन में समझ में नहीं आता कि वो क्यों प्रेफर करते हैं. तो मुझे तो, मैंने पर्सनली अपनी कंपनी का भी बहुत ग्रोथ देखा है जब से हमने ऑफिस आना स्टार्ट किया. जैसे वी वर जस्ट वेटिंग यार कि कोविड जाए और जैसे भी थोड़ा नॉर्मल हो तो हम ऑफिस आए, मतलब, और उसके बाद ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिला है. हाँ, एक जनरल टेंडेंसी भी थी ह्यूमन की, हर चीज़ थोड़ा स्लो हो जाए, हम रिलैक्स हो जाते हैं ना. सैटरडे संडे आते हम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा है. तो ऑफिस में एक ड्राइव बना रहता है, एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट मिशन. तो काफ़ी इट्स फन ऑल्सो. एंड देन अ डे एंड्स, तो आप नेक्स्ट डे रिचार्ज होके आ सकते हो कि हाँ अरे 6-7 बजे खत्म हो गया, नेक्स्ट डे वी हैव टू स्टार्ट. ऑफिस से निकलते टाइम अच्छा भी लगता है कि यार आज का काम खत्म. हाँ, you can बैठ के काम कर रहे हो तो वो घर ऑफिस का अंतर भी नहीं हाँ, आता. एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड विक्ट्री कभी नहीं हो पाती क्योंकि यू आर नेवर एबल टू स्टेप बैक. चले ही जा रहा है. एंड पैंडेमिक इसलिए यू विल सी योर डेवलपर्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट. राइट, ट्रू. बहुत इफ यू लुक एट योर डेव टीम्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, देयर वर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आपको काफ़ी मेंटल कोचिंग करनी पड़ रही थी. एटलीस्ट मेरे, आई वेंट थ्रू दैट अ लॉट विथ माई people reporting to me कि काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था to keep them encouraged and get that working. That was really true. क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं है बिजनेस में क्या चल रहा है, बस वो करे जा रहे हैं. दे आर नॉट सीइंग ग्रोथ आल्सो कि इससे कितना ग्रोथ हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो नहीं पता है, बस कर रहे हैं लोग. करेक्ट. ओके आशीष, so my next question is about upskilling. मेरा एक IIT रुड़की का फ्रेंड है अभी, and he posted in our common group recently, works in a tech giant, and he was saying that my team is being wrapped up and I'm not sure whether I'll be internally moved or I'll be fired. So this happens at every level, whatever level you reach, and this is where I feel upskilling is very important, even if you are a seasoned working professional. आपको मतलब सब कुछ आता है, आप इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन आपने अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करा एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तो आपको इश्यूज़ आएंगे. तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, और आपने कब कब अपस्किलिंग किया अपने आप को और आपको कितना हेल्प करा वो? हाँ, मतलब ब्लैक एंड वाइट आंसर इज कि येस, आपको अपस्किल करना पड़ेगा एवरी रेगुलर. जैसे कि माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर और वी यूज्ड टू जोक कि डॉक्टर क्यों बनना है, पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है. बट टर्न्स आउट इफ यू आर गोइंग टू ग्रो इन एनी इंडस्ट्री, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर अदर्स एज वेल. सो देर इज़ नो अवॉइडिंग इट. एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बीन कि अंदर से एक कीड़ा है तो हमेशा कुछ सीखते रह रहे हैं, तो इट वर्क्स फॉर मी. देर इज अ, सो फॉर पीपल हु हैव एन इंटरनल ड्राइव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड यू आर एबल टू फिगर आउट कि मेरे को ये चीज़ पसंद है, एंड यू फिगर आउट कि व्हाट इज द बिजनेस रेलिवेंट ऑफ इट, तो देन इट अपस्किलिंग बिकम्स वेरी ईजियर. है ना. जैसे मुझे एक नया कोडिंग पैराडाइम हमेशा सीखने का बहुत शौक होता है कि व्हाट न्यू वेज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, राइट. एंड हर बार कुछ ना कुछ नया आता है. लाइक Web3 केम, द होल क्रिप्टो यूनिवर्स, उसका बिजनेस प्रोपोजिशन जो भी हो एंड वॉट एवर वी कॉल देम, या फिर अब ये LLM बेस्ड यूनिवर्स आ रहा है जिसपे हम AI बोलना चाह रहे हैं. तो बट देयर आर सम न्यू वेज टू डू थिंग्स नाउ, एंड एवरी टाइम गिवन आई वुड हैव सम क्यूरियोसिटी कि यार ये भी कर सकते हैं क्या. बिकॉज पहली बार मैं सबसे पहले एक माइक्रो कंट्रोलर पे कोड लिख रहा था, एंड देन टर्न्स आउट अरे सर्वर पे भी लिख सकते हैं, अरे फिर मोबाइल पे भी ऐप बना सकते हैं. तो क्यूरियोसिटी हमेशा से थी. तो आई वुड ऑलवेज, द वे आई वुड अपस्किल हमेशा इसकी, आई वुड फिगर आउट कि मैं किस स्पेस में काम कर रहा हूँ और उसमें आई वुड फाइंड यूज केसेस, है ना. एंड देन आई वुड स्टार्ट लर्निंग उस स्पेस के बारे में कि हाउ टू मैच, है ना. जैसे आई गिव अ वेरी सिली एग्जाम्पल कि अभी ये पूरा LLM थिंग वॉज एक्सप्लोडिंग. मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो गया, लोग कह रहे हैं कि डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, कुछ बना लेते हैं ऐसा. तो आई स्टार्टेड थोड़ा, एंड जनरली यू कम फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड तो रियलाइज होगा रिसर्च पेपर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मज़ा आता है कभी अगर इफ़ यू गेट इनटू इट. तो आई स्टार्टेड रीडिंग सम पेपर्स कि लोग क्या कर रहे हैं जस्ट एज अ हॉबी, राइट. एंड देन आई सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड कि यार ये बहुत बड़ा स्पेस होता जा रहा है, मैं अपस्किल करना भी चाहूँगा तो तुरंत नहीं कर पाऊँगा, एंड प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है. तो मैंने इंटरनली कंपनी में एक मेल भेज दिया कि यार 2 हफ्ते बाद मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हाउ टू बिल्ड AI एप्स, है ना. एंड आई हैड जीरो थिंग्स अभी, बट मैं भेज दिया कि आई थॉट दिस वुड फोर्स मी इनटू लर्निंग समथिंग आउट, कि अब मेरे को 300-400 लोगों को बताना है कि हाउ टू बिल्ड AI एप्स. एंड AI वाज अ जस्ट कैच फ्रेज और क्लिक बेट, बट LLM इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड दैट सॉर्ट ऑफ फोर्स मी टू गो थ्रू अ जर्नी, एंड मैं अपने को उस तरह से कर रहा था. एंड सिंस वी ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ सेड कि अपस्किलिंग रिक्वायर्ड है, बट ये सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल डू जॉब्स नॉट जस्ट एज पैशन ऑफ इट, राइट. दे वुड वांट
to earn some money to drive some things out, and tech might not be, or technology might not be their biggest driver out, but they still need to upskill. एंड अब वैसी कंपनीज धीरे धीरे डाई डाउन होती जा रही हैं जो आपको एक हर 6 महीने पे ट्रेनिंग करवाएंगे, राइट? सर्विस इंडस्ट्रीज डू दीज, क्योंकि उनके तरफ से क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो दे वुड हायर एनीवन, और जो एग्जिस्टिंग है उनको एक ट्रेनिंग फेज से भेजेंगे, और इसीलिए मास हायरिंग होगी या मास प्रमोशन होंगे, और वो बट वो एक स्टार्टअप वर्ल्ड, और अब जिस तरह से इंडिया इनोवेशन वर्क कर रहा है दैट वुड। मेरे टाइम पे तो क्या होता था कि जब मैंने डी शो में ज्वाइन करा तो मैं 1 महीने मुझे ट्रेनिंग करा था, कोई काम कराया ही नहीं, और स्टार्टअप में वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और जब मैंने जब स्टार्टअप शुरू किया था, और हमने एक बंदा हायर किया, एंड ही लुक वेरी टैलेंटेड एंड वी हायर्ड हिम फॉर दैट। उसका पहला ही क्वेश्चन था कि कितने दिन ट्रेनिंग होगी, केम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, तो उसके लिए बहुत शौक था, बट ही वाज वेरी टैलेंटेड। तो अब कोई सिखाता नहीं है, एंड बट यू स्टिल आर एक्सपेक्टेड टू अपस्किल, but at least if people work in companies, there are 2-3, like Geeks for Geek is one option in terms of ki there are professionals you can reach out and upskill yourself, and within companies also there are policies around that you can do courses. But I think एक step पीछे larger important thing is you need to figure out what to upskill in. You know, लोग कुछ भी buzzword आता है तो people jump in and they think कि अब इसके कारण मुझे कंपनी में कोई कुछ ले लेगा, राइट? या जैसा आप एग्जांपल दे रहे हो कि वो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर टू एंटिसिपेट, है ना? एंड एटलीस्ट टेक इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छा है कि एवरीथिंग इज पब्लिक, है ना? जैसे बाकी रिसर्च इंडस्ट्रीज देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट टू फाइंड आउट क्या चल रहा है, कुछ नया आ रहा है क्या, तो वो स्किल बड़ा ही क्लोज्ड विंडो में। टेक वाइज अगर एक सिलिएस्ट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग भी आता है तो कल को उसका सारा कोड सब कुछ आउट देयर होता है, Right. मतलब अप से नीचे, तो यू कैन वेरी इजली एंटिसिपेट। वन वे टू अपस्किल इज कि ऑलवेज स्टे अप टू डेट, यू गो टू दीज फोरम्स, Geeks for Geeks runs one of them, right? Is what is going on, right? Be updated whether you want to work for it or not, just वो buzzword पता है, and then you start finding relevance to your work, इसमें से कुछ है क्या? And again that if you have that problem solving tendency, you will find that कि यार अरे एक नया वॉलेट का कॉन्सेप्ट आया है विच इज़ ओके, एंड श्योर मुझे पूरा क्रिप्टो नहीं पसंद है, बट इसमें एक डेटाबेस का नया कॉन्सेप्ट आया है, श्योर वो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी नया नहीं था, बट अब एक नई तरह से देखा जा रहा है, और मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें मुझे कुछ वेरिफिकेशन करना था जो लेजर्स मॉडिफाई ना करे कोई बार बार, राइट? तो कैन आई यूज दैट, यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट, उस तरह से इफ यू अपस्किल तो यू विल फाइंड दैट रिलेवेंस, एंड आपके इंटरनल या आउटसाइड कंपनी में यू फाइंड वेरी इजी टू मूव अराउंड थिंग्स इन अपस्किलिंग, राइट? जैसे आपने बोला अपस्किलिंग को लेके कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस है टेक इंडस्ट्री में, और हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ कोर्सेज करते हैं, तो आपके कुछ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप और कौन से स्किल्स आपको लगता है कि वी शुड कवर। जैसे मेरा एक डेवऑप्स से कोर्स होता है, एक हम डेटा साइंस पे करते हैं, एक जावा बैकएंड पे, एक मंस टेक पे, ये हमारे मेजर इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे भी है, तो ये मेजर टेक के लोगों के लिए हम कोर्सेज करते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ लगता है जो हमें करना चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए? हाँ, एटलीस्ट इंडिया में मुझे लग रहा है कि एक गैप हो रहा है जो कि अभी हायरिंग में भी बहुत ऑफन दिख रहा है इन लोगों को, एंड समहाउ पता नहीं क्यों व्हाई दिस ओपिनियन हैज़ फॉर्म्ड, बट एटलीस्ट पे वाइज देखोगे तो आप बेटर है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट विच इज़ फ्रंट एंड एंड मोबाइल डेवलपमेंट इज नॉट वेरी सॉर्ट आउट आफ्टर, बट इफ़ यू हायर गुड फोक्स इवन इन इंडिया, दे आर वेरी स्किल्ड एंड उनकी सैलरी ज़्यादा है। इवन डिलीवरी केसेस में जो हमारे पास स्पेशलाइज फ्रंट एंड या मोबाइल डेव्स होंगी, दे वुड हैव वेरी गुड कैपेबिलिटीज़, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में वैसे लोग कम आ रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट है ना, एंड पीपल वुड ऑलवेज गो टू फुल स्टैक जिसमें बैकएंड ज़्यादा कर रहे होंगे। बैकएंड सीखना बहुत आसान है, बैरियर टू एंट्री, क्योंकि दीज फ्रेमवर्क्स हैव नाउ, जैसे आपने मर्न मेंशन किया, जैंगो है एंड ऑल दोज थिंग्स आर लैंग्वेज में, बैरियर टू एंट्री बहुत कम हो गई है, एटलीस्ट टेक के लोगों में। बाहर के लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, एंड हेलो वर्ल्ड ऑफ दैट इज ईजी, तो आप बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हो, और थोड़ा आपने केओस कर भी दिया है कोड वाइज, नॉट सुपर ऑप्टिमाइज या अच्छे से नहीं लिखा है, इट वर्क्स, आपने थोड़ा इफेल्स विफेल्स लगा दिया है, क्योंकि आपके सर्वर्स आर मैसिव दीज डेज, क्लाउड्स पे यू कैन सेट ऑटो स्केलिंग, मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली स्केल हो जा रहा है ना, डीबीज आर मैनेज दीज डेज बाई क्लाउड प्रोवाइडर्स, तो आप उतना सोचना नहीं पड़ रहा है, तो बैकएंड हैज़ बिकम ईजियर, एंड अपस्किल कर भी ले रहे हैं लोग, तो तुरंत वो ट्रांजिशन नहीं मिल रहा है कि यार मैंने तो बैकएंड डेवलपमेंट भी सीख लिया डेवऑप्स के बाद, पर मुझे अब डेवऑप्स से बैकएंड में क्यों नहीं मूव कर ले रहे हो, नहीं हो रहे बहुत बार मूवमेंट्स, आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू हैव हर्ड, बट क्लाइंट साइड पे दीज आर नॉट द ऑप्शंस एनीमोर। मेरा फ़ोन है वही 8 GB का रैम है उसमें, अब यू कांट रन एनीथिंग आउट, राइट, एंड यू ऑफन कंप्लेन्स यार ये फ़ोन के कारण ये, इस ऐप के कारण ये प्रॉब्लम होती है मुझे, राइट, एंड वहाँ पे अभी भी बैरियर टू एंट्री टू लर्न फंडामेंटल्स इज डिफिकल्ट, एंड वहाँ पे आई डोंट थिंक पीपल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन देयर अपस्किलिंग। आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट, तो हम फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पे डेफिनेटली कोर्स स्टार्ट करें। इवन एज मैनेजर्स, राइट, इवन एज मैनेजर्स व्हेन वी ट्राई टू कोच मैनेजर्स दीज डेज, अब वो स्ट्रगल होता है कि इफ दे कम फ्रॉम फ्रंट बैक एंड बैकग्राउंड एंड एज अ प्रोडक्ट आपको पूरा सेल करना है, राइट, यू वांट टू बिल्ड द फ्रंट एंड एंड मोबाइल एप्स, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो नए मैनेजर्स, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस ही नहीं बिल्ड है कि यार क्लाइंट साइड अब कोड रन हो रहा है,
राइट? सो ये प्रॉब्लम मैंने आई कैन कम्प्लीटली वैलिडेट इट. मैं अभी अपनी टीम में मैनेजर से बात कर रहा था. So they said we need front end engineers in our team now. So I mean this happened in our company also. and इसलिए I often advise young folks की पहला 5 to 7 years be generic. DevOps कर लो, infra, front end, back end, mobile development, सब कभी ना कभी ट्राइड होना चाहिए. एटलीस्ट आप मेरा भी करियर देखोगे एंड पीपल ऑफन आस्क मी कि क्यों ही क्या, बट मेरी तो क्यूरियोसिटी थी. बट नाउ इफ एनीथिंग न्यू कम्स अप, मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है टू अपस्किल. तो वो जो लेटर पार्ट ऑफ आंसर है ना कि अपस्किलिंग कैसे करें, वो अगर शुरू में ये इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा हर सेगमेंट, तो बहुत ही ईजी हो जाता है टू डिसाइड एंड व्हाट टू जंप ऑन नेक्स्ट. Perfectly fine. So it was great talking to you, Ashish. I mean, totally enjoyed it, learned a lot from Same you. here. And I think audience must have enjoyed it also.